Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm here today with the 9th lecture, and in this lecture we are going to discuss a case study. It is known as Is It Worth It? You remember the last lecture that we did, it was on listening skills. So we discussed different aspects of listening skills, how a good executive can improve his listening and will be able to work effectively in any organization. Now the listening skills were cognitive. I told you that the mind needs to be used in a cognitive way, because good listening is an effort. And उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी कि साइकोलॉजिकल भी होता है और कुछ आपने ऑब्स्टिकल्स भी डिस्कस किए. तो पुराने जो पिछले लेक्चर्स हैं उनको आप ज़रूर जहन में रखें, और इसीलिए मैं आपको टाइम टू टाइम केस स्टडीज़ भी करवाती हूँ, बिकॉज केस स्टडीज़ आर अ वेरी गुड माइंड instigators. You think about things, you think about different scenarios. If you are working already, तो आप अपने ऑफिस से भी इनको रिलेट कर सकेंगे. And if you are not working at the moment, so you can get an idea about how things work in the world, और different लोगों ने किस तरह से case studies बनाई हैं, because they want people to learn from their experience. तो ये case studies यूजुअली ट्रू होती हैं. इसमें इंसिडेंट्स जो हैं वो रिलेट किए जाते हैं, और किस तरह क्या चीज़ हुई, व्हाट वाज द सिनेरियो, किस तरह से चीज़ों ने टर्न लिया, एंड थिंग्स हैपेंड इन एंटायरली अ डिफरेंट वे. जैसा कि आपने सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हुई, तो किस तरह से इन सर्कमस्टांसेस को आप डील कर सकते हैं. वी ऑल्सो डिस्कस्ड लास्ट टाइम कि आपके जो इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपनी लिसनिंग स्किल्स. यू कैन अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स बाय लिसनिंग टू अ पर्सन एंड हाउ ही इज़ कोऑर्डिनेटिंग विद देम, एंड दिस ऑल हैपन्स इन योर ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव. So remember and consider that whatever you are saying is not just going by. People are listening to you, people are attending to you, and if they do not listen well, what kind of strange things can happen. And you must have heard that about Chinese whispers, that there is one person who whispers something in another person's ears. And this situation goes on till 7 or 8 people, and at the end when the last person speaks out what has been said, it turns out to be entirely different from something which the first person had said. So again you see things change and how perception of people change. लोग किस तरह चीज़ों को परसीव करते हैं वो डिफरेंट होता है, और आपको ये केयर करनी पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन में कि आपने किस तरह से क्या बात कही है. यू हैव टू बी एब्सोल्युटली अनबायस्ड. रिमेंबर, आपके पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स बीच में नहीं आने चाहिए, और क्योंकि इससे आपकी लिसनिंग जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी. एंड इवन इफ समबडी सेइंग समथिंग नाइस, और अगर आपको वो शख्स नहीं पसंद तो आप उसको सुनना नहीं चाहेंगे. सो दिस वाज अ स्मॉल रीकैप ऑफ द प्रीवियस लेक्चर, और उसी के अकॉर्डिंगली आई हैव ब्रॉट अ केस स्टडी फॉर यू to be discussed. Our house is now ready for a redesign, Abby said to Jim. So Abby and Jim are talking about कि उनका घर जो है वो रीडिज़ाइनिंग के लिए तैयार है, रेनोवेट करना है उसको, तो उसके लिए क्या किया जाए. The tenants moved out last week, so the architect can inspect the house. उन्होंने वही घर किराए पे दिया हुआ था. The tenants have gone away and the house is empty, it is vacant, and the architects now can come in and inspect the house कि कहाँ पे क्या चीज़ ठीक करनी है. So this is a family scenario जिसमें कि एक हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने अपने हाउस को किस तरह से रेनोवेट करना है. They can give us some advice about the design, और वो they're banking on the architect
who would give them advice about the design, and who can ask, who can give them small indications that here you can put something else and it will be improved. और थोड़ा सा घर को modern करना है और उसको redesign करना है, renovate करना है, क्योंकि obviously when you have your tenants तो वो कभी चीज़ें spoil भी कर देते हैं, and that becomes a big issue, problem हो जाती है. The house was a heritage freestanding cottage that Abby and Jim agreed would be good to live in when it was renovated to suit their needs. अब घर किस तरह का था? वो हेरिटेज कॉटेज टाइप का घर था. इट वॉज नॉट अ वेरी मॉडर्न हाउस, जो कि आजकल बड़े मॉडर्न वे में बनाए जा रहे हैं, जैसे आपके अमेरिकन किचन्स हैं, या नाइस गार्डन्स या लॉन्स या टेरेसेस छोटे छोटे आपको दिए जाते हैं. बट इट वॉज अ कॉटेज टाइप ऑफ अ हाउस, and they wanted to renovate it so that they could live in it. अब उनका दिल किया कि वो उधर जाके रहें, तो उसकी renovation भी ज़रूरी थी. Abby said, I'll get the phone book and choose an architect from the yellow pages. So Abby said कि she will look into the people who are dealing with it. Yellow pages में ये होता है कि आपके advertisements और इस तरह की चीज़ें होती हैं directory में. तो she said कि I will just go through it and I will see somebody who is appropriate for renovating our house. They looked through the long list and chose the one that stated. अब उन्होंने statement के ऊपर written statement के ऊपर bank किया, and they chose one advertisement which said, we are the complete architectural service, that's the one we want, Abby said. ठीक है? So what does it say? We are the complete architectural service, यानी कि हम complete services provide करते हैं. Now you see this sentence relates to the electronic theory. You would remember कि precise words, very crisp, very much to the point, and very much understandable. So what happened? We are the complete architectural service. So वो complete architectural services provide करते हैं. वो color designing करेंगे, वो आपकी renovation करवाएंगे, वो आपके kitchen, bathrooms, वो उनको renovate करेंगे. They will do whatever you want them to do. I mean, and they will do it in the most effective manner. So this was the message that the sentence contained. और देखिए कि ये कितना precisely लिखा हुआ है और पढ़ने वाले को एकदम क्लिक किया है. Abby has said that that's the one we want. She said कि it says everything. और हमें यही करना है, और इन्हीं लोगों को हम चूज करते हैं because they have advertised themselves in a very effective manner. तो अब साथ साथ देखते चलेंगे कि written documents में भी किस तरह से आपकी communication effective हो जाती है, how things work, what are the wordings that you are using, और वो किस तरह से आपके clients को acceptable होते हैं. They will do everything for us. So उस message में क्या message था? They will do everything for us. Abby was absolutely satisfied. बहुत खुश थी, बड़ा satisfied थी कि ये हमारे लिए सारा काम कर देंगे, because initially they have said that we are the complete architectural service. So पढ़ने वाला खुश हो गया, and उसकी queries जो हैं वो answer हो गई, and this is how they said that they will do everything for us. So we don't have to bother, we don't have to be worried. वही architect हमें सब कुछ suggest भी कर देगा. Abby and Jim's first meeting with the architect Jeff did not turn out as they expected. So imagine that with that sentence that we are the complete architectural service, these clients had something in their mind. उन्होंने अपने जहन में एक नक्शा बना लिया था कि लोग ये इस तरह के लोग होंगे,
और हमें बड़ा फैसिलिटेट करेंगे. दे विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर सेइंग एंड वी विल ऑल आवर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आंसर्ड बाय देम. और वो बड़े सेटिस्फाइड थे जब उन्होंने उनको कॉल किया और मीटिंग की. लेकिन मीटिंग में द होल कंडीशन, द होल सिनेरियो चेंज्ड. सारा कुछ चेंज हो गया. द मीटिंग विद जॉफ डिड नॉट टर्न आउट एज दे एक्सपेक्टेड. जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, अब उनके स्पिरिट्स बड़े हाई थे कि हमारा घर जो है वो जल्दी से रेनोवेट हो जाएगा एंड वी विल बी एबल टू शिफ्ट इन इट एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय लिविंग देयर एंड यू नो दीज परफेक्ट आर्किटेक्ट्स आर गोइंग टू डू एवरीथिंग फॉर अस. But this is not what happened. So they were expecting something from the architect, but that is not what happened. They thought they could say, there's our house and floor plan, please design it. यानी कि उन्होंने कहा कि ये हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि this is our house, this is the floor plan, design it. So again very crisp communication, बहुत ही carefully chosen words. Earlier they chose the words that we are the complete architectural service. So इस sentence ने एक impact डाला लोगों पे. And then these people, the house owners say, there's our house and floor plan, please design it. ठीक, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए बाय दिस टाइम. सब लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. द सिनेरियो वाज एंटायरली समथिंग एल्स. जॉफ जो ये आर्किटेक्ट आया था, ही सेड वी हैव टू सिट डाउन एंड डिस्कस व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम योर हाउस. सो ही हैड अ कंसर्न एंड ही सेड दैट वी हैव टू सिट डाउन एंड वी हैव टू थिंक अबाउट व्हाट डू यू वांट. Obviously you can't get into a person's mind. आप किसी के जहन में नहीं जा सकते और ये उसके लिए नहीं सोच सकते कि अब वो इस तरह से रिएक्ट करेगा या वो ये बात सोचेगा या वो ये बात समझेगा. So what happened was he said that we have to discuss things, and I guess he was right in this scenario because ये ज़रूरी था कि चीज़ें डिस्कस की जाएं. Okay? I do not simply design or redesign a dwelling without input and guidance from the people who are going to live in it. He was right. He said कि मैं इस तरह से ये चीज़ें डिज़ाइन नहीं करता जब तक कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ मेरी मीटिंग ना हो जाए and then they tell me what they want out of it, what kind of a house is in their mind, and then I give them my suggestions और उनकी गाइडलाइंस और उनकी इनपुट से ही मैं सारी चीज़ें वो डिज़ाइन करता हूँ और फिर म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम उनमें रेनोवेशंस करते हैं. I guess this was a very good reply because obviously अगर architect कोई चीज़ बना दे and you don't like it, a window is on the left side, you want the window on the right side, तो वो फिर बहुत बड़ा clash आ जाता है. वो विंडो चेंज भी नहीं हो सकती है. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर इन्वॉल्व्ड. आपकी जो तोड़ फोड़ आप करते हैं उसमें ब्रेकेज जो है वो इफ़ेक्ट करती है पूरी बिल्डिंग को और उसका जो स्ट्रक्चर है वो हिल जाता है. तो ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ्लड्स में ये अर्थक्वेक्स में बिल्डिंग हिल जाती है. बहुत सिवियर गॉड फॉरबिड अर्थक्वेक आए तो बिल्डिंग्स गिर भी जाती हैं बिकॉज a lot of shaking has been done. So even here architects need to be very very clear about what the client wants and then they go forward with it. Otherwise there is going to be a problem और वो फिर दोबारा से wear and tear करने में extra money is involved, extra effort is involved, extra time is involved, and of course the building's structure will shake a little bit. तो वो सारी चीज़ें आर्किटेक्ट्स को पता होती हैं and they are very very technical people, and so whatever he is saying to them is generally correct. कि आप मुझे बता दें, आप मुझे समझा दें और आपकी गाइडलाइंस पर ही
मैं चल के ये सारा काम जो है आपका कंप्लीट करवाऊंगा। Dwellings meaning living area of people without the input and guidance from the people who are going to live in it. जो वहाँ रहेंगे उनकी पसंद के अकॉर्डिंगली रेनोवेशन होनी चाहिए और घर तैयार होना चाहिए। Geoff took a notepad from his briefcase. Now you see why he did that. ज़रा सोचें, पिछला लेक्चर नोट टेकिंग फॉर गुड लिसनिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग डाउन नोट्स देन यू आर नॉट लिसनिंग वेल। सो अगेन whatever you are doing, whatever is happening is something very much according to the listening rules and regulations. प्लीज़ जहन में रखें और पिछले लेक्चर को भी अपने जहन में रखिए, तैयार कीजिए। Jim decided he didn't like Jeff for some reasons. अब यहाँ पे क्या चीज़ आई है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आ गई है। बिकॉज जिम ने खुद ब खुद ही डिसाइड कर लिया कि जॉफ मुझे पसंद नहीं आ रहा। बिकॉज प्रॉबेबली पीछे जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि ही हैज़ बिन वेरी कर्ट, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन हिज सेंटेंस ऑफ सेइंग, और शायद उसकी टोन भी ज़रा स्टर्न सी होगी। I do not simply design or redesign a dwelling without input and guidance from the people who are going to live in it. शायद उसने इस तरह कहा है। और उसका नॉन वर्बल एक्शन था, अपना ब्रीफकेस खोला और नोटपैड उसने निकाला। वेरी ऑफिशियल, वेरी सीरियस और बहुत ही टू द पॉइंट, वेरी ऑफिशियल उसको उसने ये बात बनाई। प्रॉबेबली इसलिए Jim got a little taken aback कि इस बंदे का तो एटीट्यूड ही अच्छा नहीं है, ये हमारी बात क्या सुनेगा। All those things came into his mind. So you see, आपके नॉन वर्बल्स भी यहाँ पे कवर हो रहे हैं, आपके एक्शंस, रिएक्शंस एंड देन टोन ऑफ द पर्सन। वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ है कि देखें सारा सिनेरियो चेंज हो गया। पहले वही कपल बड़ा एक्साइटेड था अबाउट चूजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, चूजिंग द आर्किटेक्ट्स हु वुड डू व्हाटएवर दे हैड इन माइंड, उनके जहन में जो था। फिर वो आर्किटेक्ट जब आया तो उसने कुछ और उनको नॉन वर्बल्स दिए, कुछ और उनके जहन में बातें आई। जिम थोड़ा सा एक्साइटमेंट उसकी कम हो गई, उसने कहा कि परहैप्स दिस इज़ नॉट द राइट पर्सन। तो उसने उसी वक्त डिसाइड कर लिया प्रॉबेबली आर्किटेक्ट की टोन और उसके मैनरिज्म, उसकी वे ऑफ टॉकिंग, उसके वर्ड्स की चॉइस, उसने जो वर्ड्स चूज़ किए हैं, हो सकता है ये सारी बातें जो हैं वो जिम को पसंद ना आई हों। एंड देन ही सेज, ही डिसाइड्स that I don't want to, for some reason he did not like the architect. Then आगे चलते हैं, देखते हैं कि देखें पीछे ये सारी चीज़ें आप रिकॉल करते जाएं। पहले उनकी एक्साइटमेंट, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये बड़ा प्रिसाइसली इन्होंने कहा है कि जी वी आर द वंस फॉर यू। तो एबी वॉज वेरी हैप्पी कि ठीक है, वी हैव क्लिक्ड टू द राइट पीपल, और जिस तरह उन्होंने एडवर्टाइज़ किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। फिर वो ही केम टू द हाउस, दे हैड देयर फर्स्ट मीटिंग। उस मीटिंग में द आर्किटेक्ट वाज वेरी वेरी ऑफिशियल, टोन का प्रॉब्लम था, शायद मैनरिज्म का प्रॉब्लम था, शायद पोस्चर जेस्चर्स इस तरह के नहीं थे कि आपके क्लाइंट कंफर्टेबल हो सके। इसे कंफर्ट लेवल क्लाइंट का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दे आर द वंस हु आर प्रोवाइडिंग यू विद द बिजनेस। तो उन्हीं की केयर करनी पड़ती है, उन्हीं के लिए ज़्यादा सोचना पड़ता है। परहैप्स अगर आर्किटेक्ट ये कहता कि कैन आई नो व्हाट यू हैव इन माइंड, क्या आपके जहन में क्या चीज़ है,
या कोई इस तरह की चीज़ जो कि बड़ी पोलाइटली, बड़े कैजुअल वे में होती, वो बहुत, शायद वो बहुत फॉर्मल हो रहा था, इसलिए जिम वाज टेकन अबैक कि ही इज़ नॉट द राइट पर्सन। एनीवे, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। सो समटाइम्स आपको इनफॉर्मल भी होना पड़ता है टू ब्रिंग योर क्लाइंट्स टू अ कंफर्ट लेवल। जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन में आप कहते हैं कि जी आपका क्लाइंट 1 महीने के बाद आपसे मिला तो हेलो, हाउ आर यू सर, हाउ इज़ एवरीथिंग एट होम, आई होप सब ठीक ठाक है। आप बड़े अरसे बाद आए, आपने बड़ा टाइम के बाद हमें मौका दिया सर्विस का। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें बिज़नेस कम्युनिकेटर्स के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और यही चीज़ है कि ये फर्स्ट इम्प्रेशन ही बैड इम्प्रेशन पड़ गया। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, दे से कि जो चीज़ पहले आपको नज़र आती है वही आपके जहन में रह जाती है। I personally do not agree with first impression is the last impression, क्योंकि लोग with time improve करते हैं। So I can say that कि शायद इसमें improvement की गुंजाइश हो। Jim decided he didn't like Jeff for some reasons. उसको उसके पास से ऐसे signals मिले Jeff के पास से कि he is not a very helpful person, बड़ा कर्ट है, बड़ा सीरियस सा है, बड़ा नॉन अनप्लेजेंट सा है बंदा है, इसलिए शायद वो हमारा काम अच्छी तरह ना करे। He said, I don't want you to take notes. अब जिम जो है वो भी थोड़ा सा टोन उसकी कर्ट सी हो गई, बड़ी कटिंग सी हो गई, और उसने कहा कि I don't want you to take notes. आप नोट्स क्यों ले रहे हैं? तो इसे शुरू से ही थोड़ा सा टेंशन एटमॉस्फेयर में डेवलप हो गई। अब ये भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है कि आपकी जो है वो शुरू से ही आपकी एक रेपो ना बने, आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप ना बने, तो ऑर्गेनाइजेशंस में काम में मसला आ जाता है। एंड सेम गोज़ फॉर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन कि आप शुरू से ही अगर रूड हैं और प्लेजेंट नहीं है, अनप्लेजेंट सी पर्सनालिटी है आपकी, तो लोग आपको पसंद नहीं करते, एंड दैट गोज़ वेरी नेगेटिवली इनटू योर सक्सेस इन द बिजनेस। सो देखें कि जॉफ भी यहाँ पे नापसंद किया जा रहा है, और जिम जो है चूँकि वो क्लाइंट है, वो ही इज़ ऑन द ऑन अ मच बेटर साइड, और वो जो भी कहेगा वो आपको मानना पड़ेगा, बिकॉज client is somebody who's very very precious to any business. I think you should just be able to tell us what is best for our needs. वो कहता है कि मेरा ये ख्याल है कि आप हमें सजेशन देना कि हमें what is best for our needs. Now here थोड़ा सा मैं भी डिसएग्री करूँगी और थोड़ा सा शायद आप भी डिसएग्री करेंगे कि भाई उस बेचारे को क्या पता कि आप क्या चाहते हैं, what do you want. So again there is a problem in communication, speaking and listening. Non-verbals में गड़बड़ है, verbals में थोड़ी सी problem है, and this is how the scenario is not going the way it should go. So he says that I think you should just be able to tell us what is best for our needs. अब ये बड़ा critical सा सवाल है कि आप बताएं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। This is a question. लेकिन इसका जवाब भी आप ही के पास है, because obviously your needs are being thought of. तो मैं आपके जहन में नहीं जा सकती कि आपकी नीड्स क्या हैं वो पता करने के लिए। वो तो आप ही ने मुझे बताना है कि मुझे दरवाज़ा इधर चाहिए, मुझे विंडो इस तरफ चाहिए, या मुझे फ्लोर को मार्बल करना है, या कलर स्कीम चेंज करनी है, और आई वांट अ स्मॉल टेरेस ओवर हेयर, इस तरह की चीज़ें। आई वुड बी एबल टू टेल यू। वो जॉफ इन हिज ओन वे एज एन आर्किटेक्ट वॉज ऑल्सो करेक्ट कि मुझे क्या पता, हाउ डू आई नो कि आप क्या चाहते हैं। सो जिम का सेंटेंस पहले तो उसको जॉफ जो है वो नापसंद हो गया।
he did not like him because of probably his attitude. और उसके बाद फिर उसने कहा कि आप बताएं, you are the architect. So उन्होंने उसका in a way इम्तहान लेना शुरू कर दिया कि whether he comes up with the correct solution or not. So ये सारी चीज़ें उन्होंने आपस में डिस्कशन शुरू कर दी और थोड़ी सी टेंशन डेवलप हो गई और एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं रहा. Geoff said, that's not right. I'm going to make some notes as we talk. अब saying that's not right यानी कि क्लाइंट जो है वो सही नहीं कह रहा. ठीक है, क्लाइंट सही नहीं कह रहा, लेकिन उससे ये ना बताएं कि आप सही नहीं कह रहे, बिकॉज किसी को भी अपनी गलती दूसरा जो बताए तो वो अच्छी नहीं लगती, वो सही नहीं लगती और वो बुरा फील करता है, और वो आपका क्लाइंट है, लिहाजा उसकी इम्पोर्टेंस है. सो Geoff also said something wrong, that's not right. Anyway, जो उसने कहना था वो कह दिया, और फिर भी उसने इंसिस्ट किया कि I am going to make some notes as we talk. So you see, he is giving a little bit of room कि ठीक है, नोट्स तो मुझे अपने लिए बनाने ही हैं, तो हम बात कर लेते हैं, let's talk, और मैं ले लूँगा थोड़े थोड़े नोट्स ले लूँगा so that I know what you are talking about, what are your needs, और हम उसको किस तरह से cater करेंगे. Geoff asked Abby and Jim the following questions without giving them time to answer any of them. देखें कितना गलत एटीट्यूड हुआ है अब कि Geoff ने उनसे सवाल पूछने शुरू कर दिए और उनको ये टाइम नहीं दिया कि वो आंसर कर सकें. So again, miscommunication is going on and it will become a real big problem at the end. Without giving them time to answer any of them. उससे वक्त ही नहीं दिया, वो अपने सवाल उनसे करता गया. What I need to know is what sort of lifestyle you are likely to lead. अब ये कैसा क्वेश्चन है? उसने तो लाइफस्टाइल पे बात कर दी कि आप किस तरह रहना चाहते हैं. So you see, things are going wrong. कि पहले Geoff ने कहा that's not right, कि ये तो ठीक बात आपने नहीं की कि मैं नोट्स ही ना लूँ, मैं ही आपको सजेशन देता जाऊँ, आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लाइफस्टाइल चाहिए. बट द वे ही सेड इट वॉज नॉट इन अ वेरी वेरी प्लेजेंट मैनर. आप सजेस्ट करें कि ये किस तरह कहा जाना चाहिए था. कैन यू डू दैट इन योर माइंड? थोड़ा सा सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को बेहतर करें. व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइफस्टाइल यू आर लाइकली टू लीड. ठीक, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि do you want an open kitchen which is an American style, or do you want a very British conservative kind of a living environment जिसमें कि डोर्स जो हैं वो रूम्स इंटरकनेक्टेड ना हों, या प्राइवेसी का बहुत ख्याल रखा जाए, या there should be just a living room at the on the ground floor और उसके बाद bedrooms ऊपर हों. What kind of structure is in your mind? So इस तरह से बात करना would be entirely different, would be suggestive, not ordering. Order एक स्टाइल होता है कि आपको कैसा स्टाइल चाहिए, आपको कैसा लाइफ स्टाइल चाहिए, वो एक चीज़ हो सकती है, और सजेशन भी हो सकती है कि देखिए दीज आर दी ऑप्शंस वी हैव, तो आप कैसा पसंद करेंगे. सो यू गॉट माई पॉइंट. द वे थिंग्स आर सेड, नॉट व्हाट इज सेड, हाउ इट इज सेड. ठीक, ओके. व्हाट डू यू वांट इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, एंड व्हाट स्टाइल ऑफ एक्सेसरीज डू यू लाइक. अब ये भी ब्लंट किस्म का सवाल है कि बेडरूम के आगे, लाइक फॉर एग्जांपल कुछ लोग चाहते हैं कि बेडरूम जो है उनका वो व्यू की तरफ खुले और उसकी विंडोज़ लार्ज हों. फ्रेंच विंडोज़ उनको पसंद होती हैं, उस बिग विंडोज़, या टेरेस उनको चाहिए फ्रंट में, या इस तरह की चीज़ें. सो एक्सेसरीज़ में वो आ जाती हैं. और कंफर्ट इन योर लाइफस्टाइल कैसा है कि आपको ज़्यादा क्लाइंब ना करना पड़े स्टेयर्स,
और सेक्शंस में घर इतना ना हो कि आपको एक्सेसिबल ना हो. So he is asking relevant questions, but the way he is asking them makes it all the more different. So please follow me कि किस तरह से आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किस तरह से अपने क्लाइंट्स के साथ डील करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनको एक कंफर्ट लेवल पे पहुँचाएंगे, so that they open up and give them suggestions, give them ideas. Probably इस आर्किटेक्ट को थोड़े से सैम्पल्स ले जाने चाहिए थे और बुकलेट्स कि ये ऐसा है, ये ऐसा है. उसने तो सिर्फ नोट पैड अपना निकाला और बड़ा सीरियसली सजेशंस नोट डाउन करने लगा. सो दीज थिंग्स डू मैटर इन टुडेज फास्ट पेस्ड बिजनेस सिनेरियो, बिजनेस लाइफ और बिजनेस कंडीशंस बहुत तेज जा रही हैं एंड वी हैव टू कोप विद देम. सो ही सेज कि कंफर्ट, लाइफस्टाइल, आपको एक्सेसरीज कैसी चाहिए, क्या है भाई बताएं, ठीक है. I also need to know how many people will be living in the house at any time because that will affect how many bedrooms you require. Ab the way he has put his question, I also need to know. भाई इसको बहुत milder tone में, अच्छे वे में भी कहा जा सकता है कि how many people are going to live in this house, how many family members do you have, आराम से. Then they could have said कि अच्छा फिर उनको separate bedrooms चाहिए होंगे, so how many bedrooms do you think we should have. So you see, the way he is also putting things is very very curt, very unpleasant, very sharp और बहुत ही विदाउट फीलिंग्स. बड़ी इलेक्ट्रॉनिक सी थ्योरी उसके साथ चल रही है. सो इतनी इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी सोशल एनवायरनमेंट भी बीच में आनी चाहिए. सो यू रिमेंबर कि ये सब चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं. हाउ मेनी पीपल विल बी लिविंग इन द हाउस एट एनी टाइम बिकॉज दैट विल अफेक्ट हाउ मेनी बेडरूम्स यू रिक्वायर. वेरी ब्लंटली सेड आई वुड से, और बिल्कुल भी अच्छी तरह से ये बात नहीं कही गई. तो इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करेंगे. यू कैन राइट योर आंसर्स इन योर ओन नोट पैड्स कि अगर आप इस जगह पे हों तो आप इसको किस तरह से माइल्डर टोन में लेके जाएंगे. सी आपकी रिटन प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन. ठीक है. आई नोट यू सेड यू both would like to have some privacy that you can retreat to when all your family comes to visit or to stay. So he said कि आपने पहले कहा था कि आपको privacy चाहिए होगी because you want to be alone sometimes. कभी you have a headache या तबीयत ठीक नहीं है तो आपको अपने बेडरूम में आराम करना होता है और बाकी फैमिली जो विजिट कर रही है वो आपको डिस्टर्ब ना करे. दे कैन मूव अराउंड, दे कैन टॉक टू ईच अदर एंड यू कैन हैव योर स्मॉल कॉर्नर इन विच यू कैन सिट एंड रिलैक्स एंड डू योर ओन वर्क. और इफ़ यू फीलिंग अनवेल तो वहाँ पे आपको एक रिट्रीट सी मिल जाए, थोड़ा सा रिस्पाइट मिल जाए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल. और कभी कभी आपकी फैमिली विजिट करेगी तो कुड दिस बी एन अपस्टेयर्स एडिशन, यानी कि मैं आपकी जो प्राइवेसी है वो ऊपर के फ्लोर पे ले जाऊं, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे ले जाऊं. सो यू सी नाउ ही इज ट्राइंग टू सजेस्ट, ही इज ट्राइंग टू से थिंग्स, लेकिन वो बात कुछ बन नहीं रही. अब यू सी यूर ऑन द ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे लाउंज है बेसिकली, और जहाँ पे किचन होता है और जहाँ पे कि आपका टीवी सेट हुआ है एंड योर डाइनिंग टेबल इज़ देयर. सो वो वर्किंग एरिया है बेसिकली. एंड देन इफ़ यू गो अप ऑन टू दी अपस्टेयर्स, वहाँ पे बेडरूम्स होते हैं तो आप फिर नीचे से कट ऑफ हो जाते हैं. एंड एज यू आर द होस्ट, आप ये भी सोचें कि आपकी सोशल एनवायरनमेंट किस तरह की है कि आप होस्ट हैं तो आपको उनके फूड का भी ख्याल करना है, उनकी एंटरटेनमेंट का भी केयर करनी है. तो हाउ विल दैट गो, हाउ आर थिंग्स गोइंग टू वर्क.
तो ये सब चीज़ें जब आप सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप सजेशंस देते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट जॉफ इज़ डूइंग. बट जिम एंड एबी आर नॉट कंफर्टेबल विद द आइडिया. दे थिंक कि अगर वो ऊपर चले जाएंगे तो वो फिर कट ऑफ हो जाएंगे, विच इज़ ऑल्सो राइट. ठीक है. अच्छा, ये भी जहन में रखें कि वो बहुत जल्दी जल्दी ये सवाल कर रहा है. उनको टाइम ही नहीं मिल रहा, जैसे प्रीवियसली हमने चेक किया कि उनको टाइम नहीं मिल रहा कि वो इन बातों का जवाब दें. सो ही इज़ नॉट मेकिंग देम कंफर्टेबल एट ऑल. सो ये भी एक गलती जॉफ एज एन आर्किटेक्ट डिस्प्ले कर रहा है कि ही इज़ नॉट गिविंग देम टाइम टू थिंक एंड टॉक एंड गिव देयर ओन आइडिया. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं चल रहा. एक शख्स एक वक्त में बॉम्बार्ड कर रहा है उनको with questions. That is not going to work. As Abby and Jim tried to answer all the questions at once, Geoff said, to create the extra floor space you need, we will have to extend upwards at the back of the house so that the renovation will not be noticeable from the front. अब उसने अपनी टेक्निकल बातें शुरू कर दी कि अगर हमने एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करना है तो वो बैक साइड से होगा, बिकॉज फ्रंट की आउटलुक हम ख़राब नहीं कर सकते. सो यू सी ही इज़ वर्किंग इन हिज ओन माइंड, और वो उनके आंसर्स का तो उसने वेट ही नहीं किया कि ये हम कैसे करेंगे, किस तरह से होगा. कोई सजेशन दें, कोई आपस में विन विन सिचुएशन वाली बात हो कि जी आधी बात उनकी माने जाए, आधी उनकी मानी जाए. इफ़ यू वांट टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा स्पेस वेयर इट इज़ गोइंग टू बी सूटेबल, सो ऑल दीज थिंग्स विल बी completely discussed and should be discussed before getting to any point. So he says कि renovation noticeable नहीं होनी चाहिए from the front, तो पीछे से हम renovate करेंगे, पीछे से एक extra space construct करेंगे which can be your private place where you can go and rest if you are very very tired. So बगैर उनके आंसर सुने उसने ये वाली सजेशन भी दे दी. This way the character of the house will be retained. यानी कि घर की शेप जो है वो रिटेन्ड रहेगी, बिकॉज वो कॉटेज है तो दे वांट टू मेंटेन द यूनिकनेस ऑफ इट. वो ज़रा हट के एक घर है, बिकॉज इट इज़ इन अ डिफरेंट स्टाइल. वो अलग तरीके से बना हुआ है, मॉडर्न न्यू बिल्डिंग नहीं है, एक कॉटेज स्टाइल है. तो वो उसको भी रिटेन करना चाह रहे हैं, लेकिन इंटरनली उसमें रेनोवेशन भी चाह रहे हैं. If you accept this recommendation, you will require a bathroom, toilet upstairs. Now, technically he is right कि आपको pipes, sewerage pipes and all these things, you have to take care of the toilet conditions and how it is going to be made, how suitable it is going to be, and drainage उसकी क्या है. All these things will come in mind according to an architect जो कि ये सब चीज़ें सोच रहा है. तो वो भी अपने लिहाज से वो सही कह रहा है. ही इज़ एब्सोल्युटली राइट कि you will require a bathroom and toilet upstairs. Of course उसको आपको चाहिए, because आपने you need to relax, you need to take a shower, you need to be comfortable. अगर बहुत गर्मी है तो फिर आपको you need to have a bath और इस तरह की चीज़ें. तो एक प्रॉब्लम ये भी आ जाएगी कि एक तो रेनोवेशन पिछली वाली साइड पर होगी, एंड सेकेंडली आपको बाथरूम और टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना होगा. सो ही इज़ सजेस्टिंग वट एवर ही इज़ सेइंग, बट द वे ही इज़ सेइंग इट इज़ नॉट लाइकेबल टू दीज पीपल. उनको ये बात पसंद ही नहीं आ रही है. शायद उसका मैनरिज्म इतना अच्छा नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करें, अच्छा समझें. एंड जिम इज़ गेटिंग ऑफेंडेड. वो शुरू से ही ऑफेंड हो गया है. उसका नोट पैड जब जॉफ ने निकाला तो वो उसको अच्छा नहीं लगा. ऑल दीज थिंग्स वर कंपाइलिंग, एंड ही सेड के दीज आर द प्रॉब्लम्स. अगर आपको प्राइवेट रूम चाहिए तो ऐसे होगा, इस तरह होगा, और दीज आर द कंडीशंस. ठीक है. ही ड्यू सम एग्जाम्पल्स. Abby and Jim began to see the picture more clearly, but they felt that Geoff had been so busy doing the sketches, he hadn't heard their answers to his questions. So, आप क्या कहते हैं? क्या Geoff की
लिसनिंग स्किल्स अच्छी थी? नो, नॉट एट ऑल, ठीक है ना, बिकॉज ही वॉज नॉट लिसनिंग टू द आंसर्स जिम एंड एबी वर गिविंग. सो अगेन ये बात बहुत आपके क्लियरली आपके सामने आ जाती है कि वट एवर इज बीइंग सेड शुड बी वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी प्रिसाइज, और लिस्टिंग स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं इन सब चीज़ों के लिए. एबी एंड जिम began to see the picture clearly, यानी कि उनके जहन में पिक्चर तो क्लियरली आ गई, बिकॉज ऑफ कोर्स जॉफ वॉज प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनली बड़ा काम कर रहा था. इट्स ओनली दैट ही वॉज नॉट ह्यूमन एट सम टाइम्स. वो लोगों को फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ नहीं ले रहा था. एक रोबोटिक किस्म का उसका एटीट्यूड था, विच वॉज नॉट वेरी कमेंडेबल, और उससे उनकी कम्युनिकेशन में गैप आ रहा था. सो ये जो कपल है उसने समझी इसकी बात, ही इज़ राइट कि इफ़ ही इज़ क्रिएट अनदर स्पेस तो उसमें हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और वॉशरूम और टॉयलेट का मसला भी हो सकता है. वी नीड टू मेक अ लॉट ऑफ वेयर एंड टेयर, इनोवेशन बहुत सारी करनी पड़ेगी. सो ये सब चीज़ें उनके जहन में भी आ रही थी. एंड जॉफ वॉज बिजी मेकिंग हिज ओन स्केचेस कि ये कॉटेज है, ये इस तरह से है, पीछे जाएंगे तो इस तरह से ये होगा, स्टेयर्स होंगी, रूम होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, उसमें ड्रेनेज, एवरीथिंग, वो सब स्केचेस अपने, वो प्रोफेशनली अपना काम करता रहा. और उसने इस कपल का जो आंसर्स हैं टू द क्वेश्चंस और उनकी क्वेरीज या उनके जो सजेशंस हैं वो सुने ही नहीं. सो टेरिबली बैड लिसनिंग स्किल्स are being displayed by Joff the architect. ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया, क्लियर है? Then let's go forward. So sketches तो उसने बना लिए, लेकिन उसने उनकी बात को नहीं समझा, नहीं सुना. So non-listening was going on. Joff then noted other relevant concerns such as adequate and comfortable living area, recreation room for the family. So वो और भी चीज़ें कंसिडर कर रहा है बड़ी मैकेनिकली, लेकिन वो उनकी बात नहीं सुन रहा. लिविंग एरिया वो एक उनके लिए बनाना चाहता है. अब यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन क्या है कि जिम डिड सजेस्ट कि यू टेल अस हाउ वी शुड रेनोवेट दिस हाउस. तो वो बता ही रहा है, लेकिन वो जब बता रहा है तो वो उनकी बात सुन नहीं रहा. सो म्यूचुअल कम्युनिकेशन नहीं हो रही है. सो इसे इसके लिविंग एरिया है, रिक्रिएशनल रूम होना चाहिए जिसमें आपके टेलीविज़न या आपका होम थिएटर है या आपके म्यूज़िक सिस्टम है. सो वहाँ पे आप अपनी म्यूज़िक सुन सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, बुक्स हैं, यू कैन हैव सम रीडिंग और मूवी देख सकते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स, वो रिक्रिएशनल रूम फॉर द फैमिली उसने सजेस्ट किया, विच इज़ अ वेरी गुड आइडिया. Because he says कि आपकी फैमिली विजिट करेगी and then they can be at a place which is comfortable for them, and you can be at a place which is a little private. और आपको जब भी रिट्रीट करना हो तो आप वहाँ जा सकते हैं. Comfortable living area, recreation room for the family, and a practical modern किचन. सो वही चीज़ें हम डिस्कस कर रहे थे कि मॉडर्न किचन चाहिए, प्रैक्टिकल सा. मॉडर्न किचन्स आर बेसिकली जहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया भी साथ ही होता है, सो दैट यू कुक एंड यू जस्ट प्लेस योर फूड इन फ्रंट ऑफ द टेबल फॉर द पीपल टू ईट. और बड़ा प्रैक्टिकल सा वो किचन होता है. अमेरिकन किचन भी उसको कहते हैं, बिकॉज वहीं पे आप अपना सर्व भी कर सकते हैं. वहाँ पे एक डाइनिंग टेबल भी होती है, एक फॉर्मल डाइनिंग टेबल होती है, लेकिन एक किचन में भी डाइनिंग टेबल होती है विच यू कैन यूज़ स्पेशली इन विंटर्स. इट्स वेरी नाइस कि आपने किचन ज़रा वार्म होता है बिकॉज द स्टोव इज़ बर्निंग. सो यू कैन मेक योर टी एंड कॉफ़ी, और वो बना के तो फिर आप उसको वहीं पे सर्व कर देते हैं.
So he said that you would want a modern kitchen also because the family would be visiting, तो recreation room होगा और वो साथ साथ उनको कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें चाहिए होंगी. They can cook there, they can have a bit of snacks over there कि जैसे आपने चाय बनानी है या कॉफ़ी बनानी है या फ्रेंच फ्राइज़ या चिप्स या कुछ ऐसी चीज़ फ्राई करनी है तो वो सब मौजूद हो और बड़ा कन्वीनियंट हो फॉर द पीपल टू यूज़. एंड फाइनली सजेस्टेड एन आइडिया दैट वुड इनकॉर्पोरेट ऑफ स्ट्रीट कार पार्किंग. अब आप देखिए उसके आइडियाज़ बड़े अच्छे हैं और बड़ा प्रैक्टिकल सा, बड़ा एक्सपीरियंस्ड किस्म का ये मुझे आर्किटेक्ट लग रहा है, बट उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है, उसका द वे ऑफ सेइंग इज़ नॉट गुड, तो वो अच्छा इफेक्ट ही नहीं डाल रहा. और वो कहते हैं कि दैट वुड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट ऑफ स्ट्रीट कार पार्किंग. वेरी गुड आइडिया कि ऑफ स्ट्रीट पीछे की तरफ जाके कुछ प्लेन एरिया हो जहाँ पे आप कार पार्किंग कर सकें. क्या होगा? यस, द कार्स वुड बी वेरी वेरी सेफ. गाड़ियाँ बहुत सेफ हो जाएंगी, ऑफ स्ट्रीट होंगी, कोई उनको बैक करते हुए या आगे जाते हुए उनको हिट नहीं करेगा. आप आराम से उसको वहाँ पार्क करें एंड यू आर वेरी सेफ. और वो ओवरलुक कर रहा होगा किचन से या आपके रिक्रिएशन रूम से, तो आपकी गाड़ियाँ सेफ भी होंगी, आपकी नज़र के सामने होंगी. तो आई गेस दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया. बड़ा इंटेलिजेंट आर्किटेक्ट है, लेकिन और बड़ी सॉलिड पॉइंट्स भी बता रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक चीज़ें बता रहा है, सजेशंस बहुत अच्छी हैं. बट अगेन वो वन वे और दी अदर इस कपल को क्लिक नहीं कर रहा. आप सोच सकते हैं कि क्यों. एबी एंड जिम फाइनली फेल्ट क्वाइट हैप्पी अबाउट देयर फर्स्ट मीटिंग विद द आर्किटेक्ट. उन्होंने भी यही प्रैक्टिकल बातें सोची और उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, इसका एटीट्यूड ऐसा सा है, कोल्ड सा और नॉनशलांट सा, but his ideas are very good. He is saying good things and we are quite happy about it. और I think that it will go very well और बड़ा अच्छा सा हमारा हो जाएगा. तो फर्स्ट मीटिंग उनको लगा कि बुरी है, लेकिन when they thought about it तो वो फर्स्ट मीटिंग इतनी बुरी भी नहीं थी. You see, in this scenario sometimes you have to give in to the person's attitude and his non-verbal vibes that he is producing and आपके responses different से हो जाते हैं. लेकिन कभी कभी किसी शख्स का काम इतना अच्छा होता है कि आप उसको उसकी रूडनेस या उसकी कोल्डनेस या कोल्ड बिहेवियर को थोड़ा सा फॉरगिव कर देते हैं. सो वेरी गुड आइडिया. जो उसने आइडियाज़ दिए बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस. बट एबी एंड जिम भी थोड़ा सा कन्विंस हो गए और खुश भी हुए कि इसने ठीक हमारी कॉटेज की आउटलुक चेंज हुए बग़ैर, जो कि यूनिकनेस है उसकी, उसमें रेनोवेशंस आ गई हैं, उसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ गए हैं और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा अच्छी सी एक चीज़ बन जाएगी. कार पार्किंग भी ऑफ रोड होगी और विच इज़ वेरी गुड. एंड वी विल हैव अ प्राइवेट रूम एंड वी विल हैव अ प्रैक्टिकल किचन और बड़ा मॉडर्न से उसकी लुक आ जाएगी. आउटसाइड वुड बी वेरी कन्वेंशनल और अंदर से घर जो है वो मॉडर्न स्टाइल का ही बना हुआ होगा. सो वेरी गुड आइडिया कि उसकी जो लुक है वो चेंज ना की जाए, जो कि यूनिक है, जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी है. सो दे वर देन हैप्पी कि चलो ठीक है. और उन्होंने उसकी आर्किटेक्ट की जो नॉन वर्बल या डोमिनेटिंग सा उसका एटीट्यूड था और ज़रा कोल्ड सा उसका बिहेवियर था, उसको उन्होंने फॉरगिव कर दिया, छोड़ दिया. एज दे डिड नॉट नो व्हाट दे वांटेड एंड हैड नो आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट. सो ये बात भी थी कि वो लोग तो एक्सपीरियंस थे ही नहीं, वो कपल को तो बस घर था उनका और उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्न टच देना था.
तो दिस वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर देम, और उन्हें भी नहीं पता था कि हमें क्या चीज़ चाहिए, व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट। सो वो इसी तरह से जॉफ ने पूछा बड़ी कोल्डली कि कितने लोग होंगे, कितने बेडरूम्स चाहिए, फैमिली कब आएगी, रिक्रिएशंस पे, वेकेशंस पे, रिक्रिएशन रूम चाहिए, प्राइवेट रूम चाहिए, बिकॉज यू विल बी टू बिजी एंड यू माइट नीड टू गो एंड रिलैक्स समवेयर। ये सारी चीज़ें उसने ही सजेस्ट की उनके लिए, विच वॉज वेरी गुड, एंड दीज थिंग्स वर नॉट इन देयर माइंड्स। लेकिन अब उनके माइंड जरा ब्रॉडन अप हो गए, थोड़ा सा खुल गए। दे फेल्ट दैट ही हैड इन्फॉर्म देम ऑफ व्हाट कुड एंड व्हाट कुड नॉट बी अचीव्ड। वो ये उन्होंने फील किया, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, कि क्या वो अचीव कर सकते हैं और क्या अचीव नहीं किया जा सकता। परहैप्स देखें, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अनदर रूम, तो उसके लिए उसका जो वॉशरूम है उसके लिए कुछ डायमेंशंस चाहिए होंगी, ड्रेनेज के लिए, प्रैक्टिकल यूज़ के लिए। सो व्हाट कैन हैपन एंड व्हाट कैन नॉट हैपन was both now in their minds of this couple who owns this house. ठीक है, so very very carefully इन लोगों ने ये सारा काम जो है वो किया और बड़ा effectively उसको produce किया. They felt that he had informed them of what could and what could not be achieved in the redesign of their house. तो उनको clear picture मिल गई, दो very cold, very इनह्यूमन, ज़रा रोबोटिक सी थी, लेकिन उनको पिक्चर ज़रूर नज़र आ गई कि येस, दिस इज़ प्रॉब्ली व्हाट वी कैन डू विद द हाउस एंड व्हाट वी कैन नॉट डू विद द हाउस। कहाँ चेंजेस ला सकते हैं, कहाँ चेंजेस लाना ज़रा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। जॉफ वॉज हैप्पी टू, जॉफ भी खुश हो गया कि चलो ठीक है। ही फेल्ट ही हैड टेकन देम थ्रू द वेरियस स्टेजेस ऑफ व्हाट इफ एंड व्हाट अबाउट। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा केयर करें और देखें कि ये सेंटेंसेस जो हैं, व्हाट इफ़ यानी कि क्या होगा अगर ऐसा हो जाए, एंड व्हाट अबाउट यानी कि व्हाट अबाउट द किचन, या व्हाट अबाउट द ड्रेनेज, या व्हाट अबाउट पुटिंग द वॉशिंग मशीन इन द किचन, या व्हाट अबाउट पुटिंग द डाइनिंग टेबल इन द किचन। उसने उनके सारे स्टेजेस पे वो लेके गया विदाउट अ ब्रेक कि वो भी उससे कुछ पूछ सकें। सो ही थॉट कि मैंने ही उनके लिए उनके सारे क्वेश्चंस आंसर कर दिए हैं, बट दैट वाज नॉट द केस। सो वो खुद भी अपने दिल में बड़ा खुश था कि ठीक है, आई हैव टोल्ड देम कि दिस कैन बी डन एंड दिस कैन नॉट बी डन, एंड व्हाट इफ दिस हैपेंस, what if we have a problem, and what about all these things, what about car parking. So मैंने उनको सारे जो questions हैं उनके answer मैंने relate कर दिए हैं. So he was quite happy about things. He felt Abby and Jim had a clear picture of his ideas for their house, but he wasn't sure he really knew what they wanted. So ये एक drawback मौजूद है कि वो श्योर नहीं था। वो क्यों श्योर नहीं था? बिकॉज ही हैड नॉट लिसन्ड टू व्हाट एबी एंड जिम वर आंसरिंग। अगर वो रुक जाता, थोड़ा ठहर ठहर के उनसे बात कर लेता, थोड़ा समझ समझ के उनसे बात कर लेता, तो वो उसे भी पता होता, क्लियर पिक्चर होती कि व्हाट दे वांटेड, बट दैट वाज नॉट द केस. Perhaps he had jumped to conclusions. So again he says that वो conclusions पे खुद ही jump कर गया था. उसने conclude कर दिया खुद ही कि जी ये इस तरह से होना चाहिए, कि ऐसे होना चाहिए, मैं इस तरह कर दूंगा, I will do this, I will do that. What about this thing and what if this thing happens? So उसने answering, questioning सभी खुद ही खुद कर ली और घर का sketch बना के उनके सामने रख दिया. At their second meeting, अब क्या होता है second meeting में क्या हो रहा है? At their second meeting, Geoff showed Abby and Jim his design for their house. उसने डिज़ाइन जो था वो दिखाया. They both looked at it and said, "No, this is not what we wanted." Punchline: This is not what we wanted.
पहली पूरी मीटिंग वेस्ट हो गई, बिकॉज जो स्केच, जो डिज़ाइन वो लेकर आया वो एक्सेप्टेबल ही नहीं था. एंड दे सेड कि नो, दिस इज़ नॉट व्हाट वी थॉट अबाउट, व्हाट वी वांटेड, और ये ऐसी चीज़ है ही नहीं जैसा कि हम चाह रहे थे. अब वो बोलना शुरू हुए हैं. यू सी, पहले उन्होंने भी गलती की कि जब उन्होंने कहा कि यू टेल अस हाउ दिस शुड बी चेंज्ड, या किस तरह से इसमें चेंजेस लाने चाहिए. और जब जेफ ने बोलना शुरू किया वो भी समझे कि ठीक है, मे बी दिस इज़ व्हाट वी वांट. दे वर अ लिटिल कंफ्यूज्ड. Geoff was a little confused because he had come to conclusions, he had jumped to conclusions without knowing their ideas, without knowing what they were thinking. So ये सारी चीज़ें जो है ना वो confusion create कर रही थी. We want something that looks like a heritage house. Now again, this sentence could have been said in the beginning. लेकिन फिर ये केस स्टडी कैसे बनती? अगर सब चीज़ें ठीक हो जाती तो हमारे पास ये केस स्टडी ना आती. सो ये वो कह रहे हैं कि हमें एक हेरिटेज हाउस चाहिए, यानी कि बड़ा कन्वेंशनल सा घर चाहिए, विच इज़ कंफर्टेबल फॉर एवरीबडी, वेयर पीपल कैन कम इन एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय देमसेल्व्स, और बड़ा अच्छा सा उनको एक एटमॉस्फेयर मिल जाए. तो हमें तो ऐसा घर चाहिए. तो ये पहले बता देते. बट यू सी, the miscommunication, listening process ठीक नहीं है, non-verbals ठीक नहीं है, acceptance of each other is not right. So ये सब चीज़ें गड़बड़ कर देती हैं, problem create करती हैं. This looks like a combination of a heritage house and a Cape Cod extension. ठीक है. अब उन्होंने कहा कि ये तो हमें एक हेरिटेज हाउस का और केप कॉड का एक एक्सटेंशन लगता है, यानी कि इसमें मॉडर्निज्म भी है और इसमें एक एंशिएंट लुक भी है. तो हमें तो बेसिकली हेरिटेज हाउस चाहिए. यानी कि प्रॉबेबली दे डोंट वांट टू चेंज इवन द इंटीरियर ऑफ द हाउस. उसी को उन्होंने थोड़ा सा रिकन्स्ट्रक्ट या रीबिल्ड करना है और थोड़े से उसमें रेनोवेशन ला के उसको उसी तरह से वो रहना चाहते हैं. द मॉडर्न किचन का जो कॉन्सेप्ट है ऑफ जॉफ वॉज नॉट अपीलिंग, वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू दिस कपल. जॉफ सेड, इट इज़ जस्ट वॉट यू नीड. एबी एंड जिम रिप्लाइड इन यूनिजन, नो, वॉट डू वी डू नाउ. अब जॉफ जो था वो उनको कन्विंस कर रहा था कि यही चीज़ आपको चाहिए. बिलीव मी, इट विल बी गुड फॉर यू, और इट इज़ नॉट गोइंग टू स्पॉइल द आउटलुक ऑफ द हाउस, और उसको वो ख़राब बिल्कुल भी नहीं करेगा और अच्छा रहेगा. प्लीज़ कंसिडर दिस थिंग. और इसको इसी तरह से मैं रेनोवेट भी कर देता हूँ. ऑल दीज थिंग्स एंड दिस इज़, इट इज़ जस्ट वॉट यू नीड. ही थॉट कि उसने जो स्केच बनाया बड़ा अच्छा बनाया है, अ वेरी गुड स्केच. And he was proud of himself कि देखो मैंने कितना अच्छा काम किया. But the couple was not happy with it. They said no, what do we do now? We will have to look for another architect. ठीक है ना? So here our case study ends. We will come to the questions. लेकिन थोड़ा सा इसका recap करते हैं to revive your memory कि a couple wants their house renovated. इट इज़ अ कॉटेज, हेरिटेज हाउस है, उसकी आउटलुक चेंज नहीं करना चाहते. दे हैव ऑप्टेड फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चरल कंपनी जिसमें था कि वी विल डू, दिस इज़ व्हाट यू नीड, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू, वी विल टेक केयर ऑफ ऑल योर आर्किटेक्चरल नीड्स. तो वो सेंटेंस क्लिक हुआ उनको और उन्होंने उसको चूज़ किया. बट जब उनकी मीटिंग हुई, देयर वाज बैड लिसनिंग फ्रॉम द आर्किटेक्ट्स साइड, और उसमें उसको कुछ कन्फ्यूजन्स रह गई. उसकी सजेशंस अच्छी थी, दे वर गुड सजेशंस, वट एवर दे टॉक्ड अबाउट वर नाइस और एक्सेप्टेबल थे. लेकिन जब स्केच सामने आया तो दैट वाज नॉट व्हाट the couple had expected,
and they said they were absolutely confused, and they rejected that plan, and they said that this is not what we wanted. Question number 1. What barriers to listening does this case study reveals? अब आप अपने आंसर फॉर्मुलेट कीजिए और सोचिए कि बैरियर्स क्या हैं लिसनिंग के. रिमेंबर that when you are not ready to listen to any other person, then you will never be listening. Geoff was continuously talking himself and giving them suggestions, not giving them time to think, to give their own ideas, give their own opinion. So इस तरह से एक sort of non-listening on the architect's part was going on. So we discussed non-listening के different aspects also in the last lecture. So ये सारी चीज़ें जहन में रख के इस आंसर को formulate करें, and these are the barriers that when you are thinking too much about your own self. हमने एक ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि जब आप अपने ही टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप दूसरे की बात नहीं सुन रहे होते, और जॉफ ने बड़े क्विकली क्वेश्चंस पुट अप किए जो कि कुछ उस कपल ने आंसर किए, कुछ नहीं कर सके. तो वहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो गई, टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं था ऑब्वियसली कि उनको डिस्कशन करनी चाहिए थी. जॉफ ने अपने आइडियाज़ दे दिए, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, और जब वो वापस आया तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए. सो दिस इज़ हाउ थिंग्स डिड नॉट वर्क वेल विद दिस क्लाइंट एंड द आर्किटेक्ट रिलेशनशिप. सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सम ऑफ द वीकनेसेस इन जॉफ्स क्वेश्चनिंग स्किल्स. तो देखें कि वीकनेसेस क्या हैं. बड़ी जल्दी जल्दी बोला, ही हैज़ बिन टॉकिंग वेरी क्विकली, things have been coming into his mind very very quickly, very professional and very calculated and very cold perhaps. और ये थोड़ी सी weaknesses थी उनकी उसकी questioning skills में. बड़ा बहुत ही impolite किस्म के questions थे कि I suggest that you do this and yes I will take notes. और जब हम थोड़ा सा उसको recall करते हैं केस स्टडी को कि I will put up some questions and you will answer them and I will tell you what we can do and what we cannot do. तो इस तरह से अगर इस टोन में और इन वर्डिंग्स के साथ वो बोला है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स में ऑब्वियसली वीकनेसेस हैं. क्वेश्चनिंग स्किल्स should also be very very appropriately done. बड़ा अच्छी तरह से उसको करना चाहिए. And if you do not ask question properly, then you should not accept or expect answers also. कि आपने question ही सही तरह नहीं पूछा तो आपका जो receiver है who is going to answer the questions, how will he do that? Obviously the question is not clear, and he put up the questions and then he answered them himself without waiting for them to reply. So उसमें बहुत सारी confusions develop हो गई. So his questioning skills were really very very weak, I would say. Then third question is, how could Geoff have used encouraging listening skills to gather more information about their needs? So you see, he could have probed them, he could have asked them that what kind of a kitchen do you want, instead of suggesting that okay, here is a modern kitchen, I suggest. So ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए. Encouraging tone में he should have talked to them that okay, what do you want, what kind of a house renovation you require, and tell me the rooms which you need to be constructed because you have a large family and they might be visiting you in the vacations. So the way you talk to people in a polite and encouraging manner so that the other person has time to answer you as well. ये नहीं कि रोबोटिक तरीके से एक सवालात आप पूछते जाएं और आंसर्स का वेट ना करें. So things will go wrong and miscommunication will take place as it happens in this case study.
So consider कि encouraging listening style क्या होता, nodding होता, moving a little towards them, थोड़ा सा आगे जाके उनसे बात करना, and showing an interesting face, आपके expressions, आपके facial expressions ऐसे होते कि वो ये समझते कि yes he is taking interest in what we are trying to suggest. ना कि Joff was very cold and very precise and very professional, so वो उनके साथ ये communication gap आ गया था. So think of more ideas, think of more things, and you can formulate your answers. Question number 4 is, describe how Abby and Jim could have used attending skills to understand Joff's questioning better. So again, on their part, on the client's part, it is also important that what is being explained to them, they should listen to it carefully. Now, what had Jim done? Jim had made up his mind that Jeff was not the right person at that time. उसने पहले ही ये अपने जहन में सोच लिया कि ये बंदा मुझे acceptable नहीं है. So if you think that way, then आपके clients भी जो हैं वो हो जाते हैं unhappy, and things go wrong in all these circumstances, all these situations. So on the part of the architect, there were some mistakes. On the part of the clients, there were some mistakes, and if all these things could have been handled in a proper manner, in a good communicative manner, listening or speaking, दोनों skills अच्छी use होती, so the things would have been very, very good and very, very appropriate. So I hope you enjoyed this case study. Interesting थी, और आपकी थोड़ी सी exercise on listening skills भी हो गई. And with this we end our lecture number 9 now. Thank you very much. Allah Hafiz and thank you.